रिकॉर्ड करूं। 2.15 15। चैप्टर 2 श्लोक 15। हम्म। यम ही न व्यथायन्ति एते पुरुषा पुरुषार्षभा सम दुःख सखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम यम न व्यथन्ते इति पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृताय कल्पते। O best among men, translation, O best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Srila Prabhupada purport. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate the difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjun's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere, even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved person. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet, for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. But I think this is a I mean, in my opinion, I think it's a very uh, advanced stage that somebody who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both. So, matlab, that means you have given up sense gratification, you have given up material sense objects, you are only attached to Lord Krishna, you are only attached to what will give Lord Krishna pleasure. Then you can achieve this type of a thing. Because otherwise, so we are all the time touching material sense objects. Usme to happiness, distress, it keeps on affecting us. All our activities are like अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि भाई, पहले तो उन्होंने ये बताया कि क्या नाम है, ये जो है ना, जो समझदार आदमी जो है, लर्नेड है, पंडित है, वो ना तो लिविंग के लिए मोल्ड करते हैं, ना डेड के लिए है, नंबर वन। that. दूसरा, फिर ये सोल जो है इटर्नल है। Hmm. अच्छा, फिर लेकिन वो अर्जुन को तो भाई बॉडी से भी लगाव है, उसको मारने में, मतलब उसको लग रहा है बड़ा दुख हो रहा है। तो उन्होंने पिछले बार ये समझाया कि भाई उसको तितिक्षा करो। फर्दर उसी चीज को लेकर के शायद ये बता रहे हैं, अब उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि यम हिमना व्यथन्ते थे, मतलब कि, मतलब वो परेशान नहीं होता आदमी जो है, वो जो है, जिसको जो 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 कि ये सब चीजें देख करके परेशान नहीं होता, और जो सुख और दुख दोनों में ही बराबर समझते हुए समझने का हो जाता है, जिसका द पर्सन हु इज एबल टू अचीव सम सुख दुख, अब जो सुख और दुख दोनों को बराबर समझने वाली स्टेज पे पहुंच जाता है, जैसा तुमने कहा ना, इट इज डिफिकल्ट, Hmm. इट इज वेरी डिफिकल्ट। कि आपके घर में बच्चा पैदा हो, आपका लड़का पैदा हो, और एक स्टेज पे आपको उसका दुख भी, जैसे अब चित्रकेतु महाराज थे, है ना, उस टाइप की सिचुएशन में सम सुख दुखम धीरम, मतलब वो जो है ना, इज स्टडी, मतलब कि उसको, तो वो जरा इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अब धीरम, बट सोम वृतवाय कल्पते, मतलब कि सोम 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 ऋतवाय कल्पने का मतलब है एक्चुअली अमृत से, मतलब है, मतलब कि वो लिबरेशन के लिए Hmm.
एलिजिबल हो जाता है। तो एलिजिबल होने के लिए मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम ये इन लोगों के मरने पे या ये जो ये हो रहा है जो तुम्हें ना, इससे बचो, इससे बचो ताकि तुम कर्म है देन यू विल बिकम एलिजिबल फॉर जो since है। you yeah, since you brought up that, so अमृत वाया अमृत way, तो आई थिंक ये अमृत है, ये अमृत अमृत, अमृत पीने के सोम, एलिजिबल हो सोमृतवा है, जाते हो। हाँ बिल्कुल सोम तो अमृत, हाँ एक्चुअली हाँ अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है कि अमृत मीन्स लाइक इटर्नैलिटी की तरफ बिल्कुल। यू आर। एंड एक्चुअली इसका मतलब है कि हमें ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में एंगेज ना करें तो हम इटर्नैलिटी की तरफ जा सकते के हैं। लिए एलिजिबल और हो सकता अगर है, भी यही मतलब है, हाँ, एग्जैक्टली यही मतलब है। यस, यस, और अगर हम ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से उलझते रहेंगे ना, उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे, अब हैप्पीनेस वो डिस्ट्रेस, यहाँ पर जो है तो ना फिर प्रभुपाद जो है ना ये सन्यास का पॉइंट क्यों लेके आए हैं? वो केवल हम्म वो क्रम आपको सुख और दुख से अलग करने के लिए लेके आए हम्म हैं। उसी हम्म उन्होंने की कर्म है, मतलब एक तरह से वो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि सन्यास लेना ले, कह तो रहे, बट वन हु इज हम्म सीरियस अबाउट मेकिंग हिज लाइफ परफेक्टली परफेक्ट श्योरली, मतलब कि वो जो सेल्फ हम्म रियलाइजेशन में रियली सीरियस है, श्योरली अडॉप्ट द संन्यास ऑर्डर ऑफ लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम संन्यास लेने के लिए अगर तुम सीरियस हो तो the difficulty usually arises from having to severe family relationship to give up the connection of wife and children। ये यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं एक्चुअली, हम्म, ये ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट दिस हियर, या अपना है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं। बट इफ anyone is able to tolerate such difficulty, सब अपना ही बता रहे हैं, surely his path to हम्म spiritual realization is complete। हम्म Similarly, in Arjun's discharge of duty as a kshatriya is advised to perverse, preserve, even परजर्वेयर। if persevere, even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons। यू सी अर्जुन को तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, तुम्हें इससे तुम्हें दुख दुख जो होगा भी ना, दुख जो होगा और कुछ तो किसी को टॉलरेट करो। टॉलरेट करो उसको, और क्या नाम है, जो उसके बारे में जो दोनों चीजों को सुख और दुख को बराबर समझ, क्योंकि तुम्हारे भी कुछ लोग मारे जाएंगे तो तुमको दुख होगा, तुम और दूसरे लोगों को मार दोगे तो तुम्हें हो सकता है सुख होगा। तो सोच सकता है तुम क्या नाम है, मतलब उसको क्या नाम है दुर्योधन को मार दोगे तो तुम्हें खुशी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अपना ही कोई भाई मारा गया या कुछ हो गया तो तुम्हें दुख होगा। तो लेकिन ये उसमें आदमी व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यथित करके सुख और दुख जो है ना वो उस जो उसमें जो धीर होगा वो उसको क्या नाम है, मतलब उसके लिए इटर्नैलिटी का रास्ता खुल जाएगा, फिर उसको मतलब बार हम्म बार रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अपने धर्म का पालन करो हम्म और देन यू विल बिकम हम्म, एलिजिबल फॉर सोमृतवाय, यू विल एलिजिबल फॉर लिबरेशन, यू विल बी एलिजिबल फॉर लिबरेशन। अच्छा, इसमें यही ये भी मतलब जैसे है। जो आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो तो वो भी समझ में आता है। इसका मतलब कि भाई जिस भी पोजीशन में आप हैं, जैसे अभी शीला प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट संन्यास बिकॉज ही इज इन दैट संन्यास ऑर्डर ऑफ लाइफ, तो वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब जैसे हम जैसे लोग जो गृहस्थ में हैं, तो भैया जो हमको वी हैव टू गो, ये सफर तो करना ही पड़ेगा, ये हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस, एंड उसको सफर करते हुए भी आप अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी करते रहिए फॉर लॉर्ड कृष्णा। बस यू कंटिन्यू डूइंग योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉर लॉर्ड कृष्णा, जिस भी ऑर्डर में है, ब्रह्मचारी हैं, जिस भी वर्ण में है, जिस आश्रम में है, टू कीप डूइंग। उसमें डिस्ट्रेस और ये हैप्पीनेस डिस्ट्रेस रहेगा, वो जो वो ये तो भगवान यहाँ ने इसके पर जस्ट पहले यहाँ वाले पर श्लोक में यहाँ बता पर जो दिया। ये बता दे रहे हैं ना, ये सम सुख दुखम धीरम, जो कह रहे हैं ना, इसका कनेक्शन जो है ना बॉडी से है। हम्म सम सुख दुखम धीरम, जब आप अपने आप को मतलब बॉडी और सोल के डिफरेंस को समझ जाएंगे ना, तब आप हम्म और उसको आत्मसात कर लेंगे, तो फिर आप जो है ना यू विल बी ऑन पाथ टू लिबरेशन। तब आप जो है ना सुख और दुख को बराबर समझेंगे कि सुख और दुख जो पिछले श्लोक में बता ही चुके हैं कि सुख और दुख, सर्दी और गर्मी जो है वो बॉडीली कंसेप्शन में है, वो दैट इज ड्यू टू
क्या नाम है, मतलब सेंस परसेप्शन की वजह से है। लेकिन वो Go एक्चुअली होता ही होता है, क्या नाम है, वो जो है ना, वो इट इज इजियर सेड देन डन। लेकिन ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड अगर आपको समझ में आ जाए ना तब वो है। लेकिन उसके रास्ते में इम्पेडिमेंट्स भी उन्होंने बता दिया, बीवी बच्चे, घर परिवार। खाली बीवी बच्चे ही नहीं है यार, ये घोड़ा गाड़ी, ये सब कुछ है। कुत्ता बिल्ली, क्या नाम है, जो भी आपने पाल रखा है ना, जो सारा कुछ, Yep. गाड़ी घोड़ा, सारा कुछ है, अटैचमेंट विद एनीथिंग। सम सुख दुखम धीरम, वेरी वेरी। यहाँ पर जो है ना, ये अभी ये उसी 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 फ्लो में चल रहा है। भगवान जो है ना, वो तरह तरह से बॉडी और सोल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहने की कि भाई कोशिश कर भाई, रहे हैं। कि सोल को अगर आप समझ जाओगे ना, तो वो आपको सुख दुख नहीं होना बंद हो जाएगा। तो आप सोल को और बॉडी को और उसकी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना ठीक से, जब आप अपने आप को, मतलब यू विल बी एबल टू, देन यू विल बिकम सेल्फ रियलाइज, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड सेल्फ हम्म। रियलाइज। हाँ, तो बेसिकली यही कह रहे हैं ना कि जो भी सुख और दुख है वो तो बॉडी से आ रहा है। बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड। उसको मतलब यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग विद द बॉडी, यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट इट एंड कंटिन्यू सर्विंग द लॉर्ड। लॉर्ड को सर्व करने से तो सभी कुछ फॉल होना पड़ जाएगा अपने आप को। आपको ज्ञान भी मिलना हम्म। शुरू हो जाएगा, आपको हम्म। आपको कर्म है, मतलब समझ में भी आने लग जाएगा। जब कई चीजें आपके समझ में, द मोमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द, भाई पहली स्टेज, एक एक स्टेज तो ये है कि आप अपने आप को समझेंगे दैट यू आर स्पिरिट सोल। अगर आप ये समझ गए, और फिर आप भगवान को, जब भगवान की मतलब डिवोशनल सर्विस तो आप अर्नेस्टली तभी शुरू कर सकते हैं जब आप भगवान को समझ जाएंगे। तभी तो जो दिव्य हम्म। दिव्य ज्ञान में हम्म। इसीलिए तो हो रहा है। तो हम्म। सी क्या नाम है, ताकि आप भगवान को समझना इसीलिए बहुत जरूरी है। तभी आप भगवान बिल्कुल। के डिवोशनल सर्विस कर पाएंगे। जब भगवान की डिवोशनल सर्विस कर पाएंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि भैया ये बॉडी का कुछ लेना देना नहीं है। लेना दे। ये भगवान की माया जो है ना, इस बॉडी को कंट्रोल करती है। भगवान जो है ना, ये सुख दुख भी, ये सब मतलब माया के थ्रू आपको होता रहता कंट्रोल है होता गवाह। रहता है। हाँ, माया माया जो है ना, इसीलिए जब आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, तो फिर आपको वो कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालेंगे जिससे कि आपको फिर एहसास होना बंद हो जाएगा। एहसास होना बंद हो जाएगा। हम उस चीज को नहीं फील कर पाते, भाई हम तो, आई एम नॉट क्या नाम है एट दैट स्टेज। बट मुझे लगता है कि क्या नाम है, ये ऐसा होता होगा, ऐसा ऐसा लोग जो अब जो लोग भाई। करते हैं, वो लोग उनको दे गेट देयर, दे गेट देयर, आई एम वेरी श्योर दैट दे आर रीचिंग देयर। हाँ, एटलीस्ट थ्योरेटिकली पता लग जाए तो एटलीस्ट वन कैन नो। देन धीरे धीरे एटलीस्ट यू वन हैज द मतलब ए कंसेप्शन कि भाई इन थ्योरी दिस इज व्हाट इज। नहीं, आप अगर क्या नाम है, इसी को सोल और बॉडी और सोल पे ही मेडिटेट करें ना, तब भी आपको काफी समझ में आ जाएगा। ये जैसे आपको काफी। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, वंस मैं ऐसी सोच रहा था, देखो सोल जो है, इट इज इनसाइड योर हार्ट, ए वेरी स्मॉल पार्टिकल, मतलब वेरी वेरी 1/10,000th ऑफ योर द हेयर के उसके बराबर है। अच्छा, अब क्या है कि इसके ऊपर क्या नाम है, बॉडी का कवरिंग है, ग्रॉस एंड सटल बॉडी का कवरिंग। अच्छा, अब जो है, आपको की चेतना को क्या नाम है, वो ये जो माया जो है ना, माया तीनों गुणों के थ्रू आपको फोर्स करती है डिफरेंट तरीके से एक्ट करने के लिए। कई तरीकों से एक्ट करने के लिए क्या नाम है आपको करती है। यू सी, यू आर हम्म। मेड टू वर्क, क्या नाम है। अब जब एक बार आप अगर भगवान के पास, तो भगवान के माया भी जो है भगवान से कंट्रोल्ड है। तो हम्म। अगर आप राइट अर्नेस्ट लॉर्ड की क्या नाम है वर्शिप अगर शुरू कर देंगे, इफ यू हम्म। स्टार्ट, तब फिर आपको इस माया से छुटकारा मिलना शुरू हो जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि ये यस। ये जो तीनों गुण है ना, तीनों गुण जो है,
ये कंट्रोल कर रहे हैं हम लोगों को। ये इतना तो मैं समझ गया हूँ, ये तीनों गुण हैं। हम्म। और कई बार जो है ना, वो कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बस ही नहीं चलता है इन तीनों गुणों को कंट्रोल कर पाने का। और उसको कंट्रोल करने का तुरंत यार वो भगवान को ही प्रे करो, उनकी कृपा हो जाएगी तो ये कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे बस। अरे भाई वो ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने, क्या नाम है कि बहुनाम मम- बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कई कई जन्म लेने पड़ते हैं लोगों को ये सब चीजें समझने के लिए। लेकिन ये है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आकर के ये काफी सिंप्लीफाई कर दिया है उन्होंने। आकर के उन्होंने भैया ये कहा कि तुम लोग चैंटिंग करो यार, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग। ये जरूर है कि भाई चैंटिंग करने का मतलब एक नियम बन गया। वो कितनी प्योर चैंटिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, बट आप चैंटिंग कर रहे हैं, यही क्या काम है, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। अब जैसे नहीं कल वो जब से मैंने ये जैसे पढ़ना शुरू किया, अब मैं आई एम ट्राइंग टू, ये सेकंड चैप्टर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट श्लोकास अगर हम लोग थोड़ा बहुत मेडिटेट करते रहेंगे ना, तो हमको थोड़ा सा समझ में आएगा चीजें। यस बिल्कुल। अदरवाइज यार ये माया तो मौका देखती है, फट से पकड़ती है, बिविल्डरमेंट शुरू होता है तुरंत। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला भी श्लोका जो है, अभी आगे वाला भी श्लोक और भी इसका भी वो है। भगवान ने कई तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, यही स्टॉप कर रहे हैं इसको, रिकॉर्डिंग।